have used up every single drop of these skincare products. Some were amazing and some not so much. But would I actually buy them again or not? Let's find out. Hey everyone, welcome back to my channel and welcome back to our latest skincare empties products which I have completely finished. I will be sharing my honest thought, like whether they have lived up to the hype and most importantly if they are worth repurchasing or just one time fling. If you're curious about what's staying in my routine and what's getting the boot, continue watching. Very first one we have is this CeraVe foaming cleanser. You can see it was a jumbo packaging of 473 ml of the product and I have absolutely loved it. This has worked the best on my skin because my skin is sensitive, it's prone to acne, it's prone to comedons. This one is a very gentle formulation. It helps to keep your skin barrier healthy and at the same time it helps to control your acne, but it's not at all very potent that it will dry out your face. Like, it's a very gentle, well formulated formulation and I absolutely love it and would love to repurchase again. Next up we have this Cetaphil hydrating foaming gel to foam cleanser. This one for me was a okay product. Like, it was a creamy formulation. बहुत ज़्यादा मैंने इसको उतना इंजॉय नहीं किया. दैट्स वाई थोड़ा टाइम यूज़ करने के बाद मैंने इसको अपने हस्बैंड को दे दिया था and he is the one who have finished this off. अच्छा है, gentle है, but if I have to choose one, like either CeraVe or Cetaphil, I would choose the CeraVe. Next up, I have this Dot & Key Barrier Repair Plus Hydrating Gentle Face Wash. It's got probiotics and 5 essential ceramides. ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन, जेल लाइक है, काफ़ी अच्छे से फॉर्म अप होता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है. ग्रेट फॉर ऑल स्किन टाइप बेसिकली, बट इफ़ यू आर ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन दिस विल बी परफेक्ट फॉर यू. हैज़ दैट जेल लाइक टेक्सचर, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है एंड वर्क्स रियली वेल. बट द ओनली कॉन इज द फ्रेग्रेंस. इट हैज़ अ little bit of strong fragrance, so if you avoid fragrances you can skip this one, but if you're okay with the fragrances you can go for this. I may not repurchase this one again because I love the CeraVe one. Next up we have this Pigment Bio Foaming face wash from the Bioderma. Again this was a very okay product for me because इसके अंदर एजिलिक एसिड था, कुछ ऑयल्स भी थे, जेल लाइक टेक्सचर था, क्लीन अच्छे से करता था. बट आई फील कि मुझे इससे ना एक्नेज होते थे, मे बी बिकॉज इसके अंदर ऑयल्स थे. तो मैंने इसको हाफ यूज़ करके देन अगेन मैंने इसको अपने हस्बैंड को दिया था और उन्होंने इसको यूज़ किया है. लाइक आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वन. लाइक इट वॉज just a okay product, not really worth it, so definitely not repurchasing. Next up we have this By Wish Trend Green Tea and Enzyme Milky Foaming Cleanser. So sorry for the cap, and यहीं से पता चल रहा है कि ये किसके पास था. Yes, I tried it out. It was a beautiful cleanser, but of course मुझे नए प्रोडक्ट ट्राई आउट करने पड़ते हैं. That's why after some time मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था and he is the one जिन्होंने ये तोड़ दिया है. But yes, it was a good one, but little bit over pricey, so I'm not seeing myself repurchasing this one. Next up we have this Dew in Balance Milky Toner. Absolutely love this one and would love to repurchase again जब भी मुझे ऑफर या ऑफ मिलेगी, because this one is very soothing, very calming and the glow is amazing. बट आई फील अभी विंटर्स में मैंने इसको यूज़ किया है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है. बट आई थिंक आई माइट नॉट लाइक इट इन द समर्स बिकॉज समर्स में वैसे ही बहुत चिपचिप होती है. उस टाइम पे आई प्रेफर समथिंग विच इज़ वेरी वाटरी. मुझे ऐसे मॉइस्चराइजिंग कुछ नहीं पसंद है. बट दिस विल बी सूटेबल ओनली इफ़ यू यूजिंग इट एज अ लाइट मॉइस्चराइजर. इसके ऊपर डायरेक्ट अगर सनस्क्रीन लगाना है देन तो दिस वन इज़ परफेक्ट. बट अगर आपको इसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी लगाना है एंड देन सनस्क्रीन भी लगानी है देन आई थिंक थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये ड्यूरिंग द समर्स. सो आई मे repurchase it ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स, और अगर मुझे लगेगा बीच में कि नहीं यार आई नीड इट तो आई मे ग्रैब इट बिकॉज इट्स नॉट हैवी. बट येस डेफिनेटली एक लाइट लिक्विड मॉइस्चराइजर वाली फीलिंग आपको आपके फेस से आती है. तो फॉर अ पीपल लाइक मी जिनका स्किन बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है बहुत सारा कुछ लगा के, तो आई थिंक फॉर मी इट विल बी परफेक्ट एज अ लाइट मॉइस्चराइजर नॉट एज अ टोनर. बट या इट्स अ ब्यूटीफुल वन, वुड लव टू repurchase again. Next up we have this neem and salicylic acid
serum ampule from the Dr. Shades. Now many of you were asking me कि क्या ये या इनका जो दूसरा वाला serum है, which one is better? So see, the serum, the gel wala, that one is beautiful, that one is more potent, so you have to use it just 1 to 2 times a week, not more than that. And if you leave it for more than 10 minutes, so you will end up damaging your barrier. So that one is very, very potent. You cannot use it every day, but whereas this formulation is gentle, it's an encapsulated salicylic acid, तो ये बहुत ज़्यादा reactive नहीं है, and you can use it daily in your routine. So दोनों ही अच्छे हैं, it's totally depend on you. Like मैं वो वाला ज़्यादा प्रेफर इसलिए करती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट कि हाँ मैं बाकी के टाइम पे कुछ और प्रोडक्ट ट्राई आउट कर लूँ, बिकॉज समटाइम क्या होता है कि जब आप AHA या BHA लगाते हो तो थोड़ा सा आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो कि अब इसके बाद आपको क्या लगाना है क्या नहीं. सो जस्ट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट से कि हाँ मुझे कुछ दिन ऐसे मिल जाएं फ्री जिसमें मैं कोई और एसिड या कोई और ऐसा प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकूं. सो दैट्स वाई आई ऑलवेज वाउच फॉर समथिंग विच इज़ मोर इफेक्टिव, और जिसको मैं 1 या 2 बार लगाऊं हफ्ते में और मेरा काम हो जाए, इंस्टेड कि मुझे उसको कंसिस्टेंट डेली लगाना पड़े. सो दैट इज़ द ओनली थिंग. कैन सी अकॉर्डिंग टू योर नीड कि अगर आप भी ऐसे हो जो डेली नहीं लगाना चाहते हो, देन गो फॉर दैट. अगर आप डेली लगाने में कोई इशू नहीं है, देन यू कैन यूज इट इन योर डेली रूटीन, इन अ नाइट रूटीन. दिस वन is also beautiful. You can go for either of them. This I already have a backup, then I will see whether I have to purchase it again or not. Next we have this Skin 104 Centella Tone Brightening Capsule Ampule Serum. Beautiful one, has worked really well. I have seen results with this one and would love to purchase it again. The big jumbo packaging, but अभी नहीं. अभी I have so many products to try out. बहुत सारे सिरम्स हैं जो मुझे टेस्ट आउट करने हैं. उसके बाद आई विल सी, अगर मुझे कभी ये अच्छे ऑफ पे दिखेगा तो आई विल स्टॉक अप. Beautiful, would love to repurchase. Next up we have this Red Vein Water Gel from the Beauty of Joseon. Beautiful gel moisturizer. I already have a backup of this one. I will use it in the summers and then उसके बाद देखूंगी कि whether I have to repurchase this one or not. But it's a beautiful lightweight gel moisturizer for oily acne prone, especially if you're a comedone prone person. Try this one out. It's not a pure gel कि आपको stretch feel होता है. It keeps your skin well moisturized. नायासिनामाइड है, रेड बीन है इसके अंदर, और ऑफ कोर्स पेप्टाइड्स हैं. सो इट्स अ ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन एंड ऑफ कोर्स 100 ml की क्वांटिटी है तो काफ़ी लंबी आपकी निकाल देती है. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट एंड आई वुड लव टू रीपरचेज इट अगैन. नेक्स्ट इज अनदर एम्प्टी एंड आई डोंट नो कि मेरी कौन सी वाली एम्प्टी है. दिस इज ड्यू इन माई डिफेंस. अगेन एक और बॉटल मैंने ख़त्म कर ली है. दिस इज द फर्स्ट एम्प्टी ऑफ 2025. अभी मेरे पास आई थिंक 3 बैकअप और पड़े हुए हैं. उसके बाद मैं देखूंगी कि हाँ अगर मुझे इसकी रिप्लेसमेंट इस साल मिल जाती है देन ऑफ कोर्स आई विल लेट यू नो. अगर नहीं मिलती है देन आई हैव टू रीपरचेज इट अगेन. Beautiful. I think I don't need to talk much about this one. Next is this 5% Niacinamide Deep Moisturizing Cream from the Derma Co. This one was for dry to very dry skin. That's why मैंने मम्मी को दी थी और उन्होंने इसको यूज़ किया है. बहुत ज़्यादा थिक एंड हैवी अनकंफर्टेबल नहीं है कि बहुत ऐसे ग्रीसी सी लगती है, बोरोलिन जैसी. इट्स अ वेल फॉर्मुलेटेड मॉइस्चराइजर जो हैवी नहीं फील होता है. एट द सेम टाइम आपकी ड्राइनेस पे बहुत अच्छे से काम करता है. सो अच्छा अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है फॉर ड्राई स्किन. लाइक यू कैन गो फॉर दिस वन. आई ऑलरेडी हैव अ बैकअप ऑफ दिस. उसके बाद देखेंगे कि परचेज करना है दोबारा या नहीं. नेक्स्ट अप इज दिस एक्वालॉजिका 5 barrier hydra gel moisturizer with एवोकाडो एंड क्या है ये सेरेमाइड्स के साथ आया था. ये इसकी मैंने एक शॉर्ट वीडियो आपको दी थी. दीज आर वेरी वेरी लाइट जेल मॉइस्चराइजर. आई थिंक फेस बॉडी आप दोनों पे इनको लगा सकते हो. दिस वन आई फाउंड द मोस्ट मॉइस्चराइजिंग वन, और इसको मैंने यूज़ किया था अपने हैंड्स पे बिकॉज माई हैंड्स वर वेरी वेरी ड्राई एंड दिस हैज़ वर्कड रियली वेल. आउट ऑफ द 3 वेरियंट्स आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है. सो इफ़ यूर पर्सन हुज टूवर्ड्स ड्राई स्किन तो आई थिंक ये आपके लिए ज़्यादा बेटर काम करेगा. एंड आई थिंक दीज आर वेरी वेरी अफोर्डेबल. ये आई थिंक 300 के आसपास की हैं. ये 200 ग्राम की क्वांटिटीज. आई थिंक वेरी वेरी अफोर्डेबल. मे परचेज इट. ये तो मुझे एक PR पैकेज आया था उसमें मुझे मिली थी. बट इन फ्यूचर आई विल सी इफ़ आई हैव टू. बट हाँ अच्छी है ये. इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर देम यू कैन. एम्प्टी ये अर्जुन की है. दिस इज सेबामेड प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम. आई डोंट नो मैंने ये कितनी अभी तक यूज़ करी है. अमायरा बेबी आई थिंक ये पता नहीं
8-10 बॉटल्स मैंने ख़त्म करी हैं फॉर 2 to 3 years, मैंने बहुत यूज़ करी हैं उस पर, और अभी अर्जुन पे भी ये यूज़ हो रही हैं। आई थिंक ये 5th या 6th ट्यूब है जो फिनिश हुई है। इसके बाद मैंने वो बड़ी 100 ml वाली ली है अभी, जो भी यूज़ हो रही है। लव टू परचेज इट अगेन, बट अभी जैसे समर्स आने वाली हैं, सो आई मे ट्राई जो अवीनो का लोशन है, बेबी लोशन, आई मे ट्राई दैट ऑन हिम। अगर वो सूट कर गया देन आई विल कीप द अवीनो, बिकॉज हमारे पे वो आराम से सूट हो गया है, तो आई होप कि इस पे भी हो जाए। अगर नहीं हुआ देन आई हैव टू रिपर्चेज दिस वन अगेन। नेक्स्ट अप वी हैव दिस जॉनसन बेबी शैम्पू। आई थिंक ये भी बहुत बार रिपर्चेज हो चुका है पिछले 5-6 साल में, और आई थिंक आई एम सीइंग माई सेल्फ परचेजिंग इट अगेन। बट अभी मेरे पास मिनिमलिस्ट का पड़ा है, बेबी वाला जो है वो, एंड इवन जॉनसन का जो ब्लू वाला शैम्पू है मैंने वो लिया है हमारा के लिए। तो अभी तो नहीं, बट विल सी इन फ्यूचर। इट्स अ ब्यूटिफुल वन, you can go for this one. I may purchase it again. Next up we have this Sun Relief Ceramide Silk Sunscreen from the Formula RX. You guys know how much I love it, and you already know that I have repurchased it, and I would love to repurchase it again and again and again until I found another best sunscreen. And I think अभी इन्होंने इनका Hydra Shield का भी कुछ फेस चेंज कर दिया है, ब्लैक कलर की कर दी है। आई डोंट नो फॉर्मुलेशन चेंज हुई है या नहीं, बट आई वुड लव टू ट्राई दैट अगेन एज वेल। ये तो मैंने परचेज कर ली है, वो भी आई वुड लव टू रीपरचेज अगेन। इट्स अ ब्यूटीफुल वन। If you wanted to go for this one, you can. Next up we have this Kesar and Kojic body lotion from the Dr. Shades. ब्यूटीफुल बॉडी लोशन। अगर आपकी बॉडी पे टैनिंग का इशू है, ट्राई दिस वन आउट, इट विल डेफिनेटली हेल्प्स टू रिड्यूस द पिगमेंटेशन, बट मेक श्योर कि आप उसको एक्सफोलिएट करो और प्रोटेक्ट भी करो, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज ऐसे नहीं कि हाँ एक्सफोलिएट नहीं कर रहे, ऐसे ही लगाई जा रहे हो, तब कुछ नहीं होगा। एक्सफोलिएशन भी ज़रूरी है, चाहे आप केमिकल पील्स कर सकते हो या फिजिकल स्क्रब्स यूज़ कर सकते हो, विच एवर सूट्स यू, आप वो लगा सकते हो एंड देन यूज़ इट एंड देन प्रोटेक्ट योर स्किन। This one is beautiful, would love to purchase it again. Lastly, I have this lip balm. This is Glowiest Yuzu Lip Balm. ये ख़त्म काफ़ी टाइम का हुआ है, बट इसकी मैंने लिप बाम वाली वीडियो बनानी थी, वो नहीं बनी थी, दैट्स वाई आई couldn't show it in empty video, बट ये काफ़ी टाइम का ख़त्म हो गया है, you guys know। बहुत थोड़ी सी साइड की बची हुई थी, सिर्फ मैंने इसका टेक्सचर दिखाने के लिए छोड़ा था। अच्छा था, काइंड ऑफ अ सिमिलर टू लनेज, कि लनेज का ऑल्टरनेटिव आप इसको बोल सकते हो। ब्यूटीफुल वन, इफ यू वांट टू गो फॉर दिस वन यू कैन। आई मे ट्राई द अदर वेरिएंट्स ऑफ दिस वन। Yeah, it's a good one. Yeah, that was it for now. I hope it was helpful. If it is, don't forget to hit like, share, subscribe and press the bell button so you never miss any of our upcoming videos. I'm going to see you in my next. Until then, take care.